you guys must know about this. This happens throughout the country these days. So जब हम बात करते हैं ए सेक्शन के बच्चों की या फिर टॉपर सेक्शन के बच्चों की, कई जगहों पे उन्हें अचीवर सेक्शन बोला जाता है. पता नहीं क्यों. मेरे बैच से तो किसी का आईआईटी नहीं हुआ. So welcome to the Funny Podcast Season 3, powered by Spotify India and Idea Brew Studios in association with the Level Up Creators Program. Enjoy. Hello and welcome back to the first episode of the third season of the Funny Podcast. It's been a while. It's been quite a while since we last had a rendezvous. So, without wasting a lot of time, I'll just get to the point. This season is again in association with a great cohort called the Level Up Creators Program by Spotify and Idea Brew Studios, which right now has 50 of the sharpest content makers, brilliant, how do I put it? Brilliant ideas, because Idea Brews. And with that, one person whom you're listening to right now is me. So, first of all, thank you so much, Idea Brew Studios and Spotify India, for bringing us all together and having a great session on the way. So, today I have to talk about something which is very important. Now, when I say important, you should not start thinking that it's important, so it must be something that's, serious, because it's not. Important things can also be stupid because, well, we've had two entire seasons about it, so you need to know about that. But moreover, when we talk about my past, my hauntingly stupid past, there's just so much that has happened, and we still have a lot of stories to cover. Today's story is one such where I go back around 10-12 years, and we'll be talking about something that happened in my school because, well, लोग बोलते हैं कि 12th के बाद ऐश है, बट टू बी ऑनेस्ट 12th से पहले ही सारी ऐश हुई थी. So, no exaggeration, true facts. People who will be listening to this from my school would agree and attest to it. तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं. आज की कहानी में दो बहुत इम्पोर्टेंट पात्र हैं और दोनों में से एक भी मैं नहीं हूँ. Why I say this is because this happened when I was in 9th or 10th standard. I don't remember exactly, but yeah, उन्हीं 2 साल में से एक में we were in a school where segregation used to happen on the basis of marks. Some of you who are listening to this might understand this part because कई स्कूलों में ये होने लग गया था because of the entire IIT and medical fad. So toppers को एक तरफ और मेरे जैसों को एक तरफ. तो fortunately 9th में मैं टॉपर वाले सेक्शन में घुस गया. And while it became a very huge status symbol for me in general कि ये तो टॉपर सेक्शन में है, मेरे माँ बाप लोगों को बोल सकते थे कि ये तो ए सेक्शन का लड़का है, बट एट द सेम टाइम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें नहीं समझ में आती कि ए सेक्शन का एक अलग लेवल का प्रेशर है. एंड ये प्रेशर मुझ पे ज़्यादा नहीं था क्योंकि मेरे टीचर्स को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं मुझसे. मैं फ्लूक से घुसा था ए सेक्शन में. जो लोग सही में मेरिट लेके बैठे थे वहाँ पे उनका प्रेशर देखने लायक था. एंड you guys must know about this. This happens throughout the country these days. So जब हम बात करते हैं ए सेक्शन के बच्चों की या फिर टॉपर सेक्शन के बच्चों की, कई जगहों पे उन्हें अचीवर सेक्शन बोला जाता है. पता नहीं क्यों. मेरे बैच से तो किसी का आईआईटी नहीं हुआ. So what happened there is हम ऐसे स्कूल में थे जहाँ पे वीकली टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा चलन था. Every now and then there used to be a weekly test of a particular subject, हर मंडे एंड थर्सडे if I'm not wrong. मंडे वाले में आपको आंसर शीट में पन्ने भरने थे, थर्सडे वाले में आपको MCQs भरने थे क्योंकि हम CCE कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम ऑफ समथिंग समथिंग का था इवैल्यूएशन. आई डोंट रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑल्सो. दैट इज़ हाउ इनसिग्निफिकेंट इट हैड बीन. तो MCQ क्वेश्चंस होते थे हमारे. तो जो आंसर शीट भरने वाला टेस्ट था, मंडे टेस्ट जिसको बोलते थे हम लोग,
उसमें हुआ था मैथ्स का एक पर्टिकुलर अर्ली स्टेज थिंग, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी हैड अ मैथ्स टेस्ट and our math teacher was also our class teacher. So what he did was he had such expectations from the students that he was expecting at least 25 out of the 45 students scoring a 20 out of 20. ये था, मतलब मोर देन 50% को तो फुल मार्क्स आने ही चाहिए ताकि क्लास का एवरेज ही ऊपर हो जाए. तो 20 आउट ऑफ 20 के लक्ष्य के लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोशिश की. एंड जो हमारे क्लास का मॉनिटर था, जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव था, सीआर था, उससे मेरे मैथ टीचर को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी. ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड एंड ही न्यू कि उसके नहीं आने वाले थे. टेस्ट दे दिया हमने टेस्ट दिया. मुझे तो टॉपिक भी याद नहीं कि किस चीज़ का टेस्ट था, बट टेस्ट देने के बाद हम बैठे हैं, सबको पता है कि किसने कितना स्कोर किया, क्योंकि हम इतने, मतलब जो टॉपर सेक्शन है वो बेवकूफ़ तो होंगे नहीं. तो दे कम आउट ऑफ द एग्जाम रूम एंड दे जस्ट स्टार्ट इवेल्युएटिंग देमसेल्व्स. बुक्स खोल के चेक करते हैं सोल्यूशन सही था कि नहीं, सब कुछ. तो सबको पता है कि कितना आना है कितना नहीं आना है. सो दिस क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइन, ही न्यू कि उसके 20 तो नहीं आने वाले, बट वो उस 25 टॉप 25 वाले लिस्ट में तो था ही, जिनको 20 में 20 चाहिए था. सो नाउ इतने एक्सपेक्टेशन के बाद जब टेस्ट के स्कोर्स बाहर आए, सो स्कोर वैसे तो नोटिस बोर्ड में तो लगेगा नहीं, क्लास टेस्ट था नॉर्मल सा. सो आवर क्लास टीचर केम इन एंड ही स्टार्टेड हैंडिंग आउट द आंसर शीट्स. अब क्योंकि मेरे क्लास टीचर को मेरे से कोई घंटा उम्मीद नहीं थी, सो व्हाट ही डिड वाज he announced my marks, which was around 14 and a half out of 20, looked at me with disgust, and then he left as in he's like, ja. तो मेरे 2 रोल नंबर बाद मेरे क्लास रिप्रेजेंटेटिव का, सीआर का रोल नंबर था, तो ही वॉज कॉल्ड इन. आई वॉज लाइक इन अ स्टेट जहाँ पे मैं आंसर शीट लेके जल्दी जल्दी अपनी सीट पे वापस जाऊं, सो दैट आई नो हाउ टू, लाइक आई कैन सी द रिस्पॉन्स, क्योंकि उससे तो एक्सपेक्टेशन थी. अब वहाँ पे एट दिस पॉइंट व्हाट वी डिड वाज वी वर रियली सैड फॉर वन थिंग, विच वाज कि हमने पॉपकॉर्न नहीं रखा. एंड ऐसे सिचुएशन में पॉपकॉर्न की ज़रूरत थी. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज वी वर लुकिंग एट द पर्सन. मेरे बाद वाला रोल नंबर भी गया, लेके आ गया अपना आंसर शीट. उसके भी कोई ज़्यादा नंबर नहीं आए थे, वो भी टॉप 25 में नहीं था. तो व्हेन दिस पर्सन द सीआर वेंट अहेड, ही वाज स्माइलिंग बिकॉज उसको पता था कि उसको 20 आने चाहिए थे. उसको ये भी पता था कि उसके 20 नहीं आए, उसके 18.5 के आसपास आने वाले थे. सो पता नहीं क्यों, बिकॉज ही वॉज गूफी, ही वॉज जस्ट लाइक मी. सो वो हंसते हंसते चला गया, थिंकिंग कि हाँ मजाक करेंगे थोड़ा सा कि हाँ इस बार नहीं आए नंबर, अगली बार आ जाएंगे, क्योंकि इट वॉज इन द अर्ली स्टेजेस का फ़ायदा यही है कि यू कैन कैच अप. एंड व्हेन यू कैन कैच अप, देन इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, इट मेक्स इट ईजियर. तो उस ऑप्टिमिज्म के साथ वो गया, वो मुस्कुरा रहा था. माई टीचर लुक्ड एट हिम, हैंडेड हिम द पेपर इन एन एंगल जहाँ पे उसको वो टॉप राइट कॉर्नर में 18.5 दिख गए. एंड इट वॉज लाइक अ वेरी फ्रैक्शन, हाफ अ सेकेंड का डेड साइलेंस इन द एंटायर रूम. आफ्टर विच माई टीचर स्टार्टेड येलिंग कि ये क्या नंबर है, ऐसे कोई नंबर लाता है, व्हाट इज दिस, आई एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम यू, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. आफ्टर 30-40 सेकेंड रैंट कि उसको 20 में 20 आने चाहिए थे, दिस गाय माई फ्रेंड, ही इज स्टिल लाफिंग. एंड दैट अर्क्ड माई टीचर सो मच कि उनसे रहा नहीं गया. ही वॉज सो अनॉइड. ही एक्चुअली जस्ट रेज्ड हिज, लाइक उसने पेपर उसके हाथ में पकड़ा दिया. सो नाउ माई टीचर्स राइट हैंड इज फ्री. You guys probably know where it is going. तो उस फ्री राइट हैंड से उन्होंने एक फ्री फ्लो में थप्पड़ मारने की कोशिश की, बट क्योंकि उस लड़के की हाइट 5'10" कुछ है, एंगल सही नहीं बैठा, मैथ्स टीचर का एंगल सही नहीं बैठा, स्टिल सरप्राइजेस मी. बट वो थप्पड़ कंधे पे पड़ा, लाइक हिज आर्म शोल्डर के बीच का एरिया. बट देयर वाज सो मच फोर्स इन दैट थप्पड़ कि मेरे दोस्त की पूरी बॉडी डिस्प्लेस हो गई.
अपनी जगह से नहीं हिला, वो पूरा ही हिल गया। एंड अराउंड 1.5-2 फीट दूर ब्लैक बोर्ड वाली दीवार थी, दीवार जिसके साथ ब्लैक बोर्ड था, वो पूरा का पूरा जाके टकरा गया। अब जो इंसान मेरे जैसा होगा, यू मस्ट नो दिस, वो मार खाने के बाद भी हंसेगा, वो बेशरम होगा। एंड टकराने के बाद भी वो हंस रहा है, which irked my teacher even more, so he pulled him by his shirt and फिर से मारा, और वो फिर से वहीं जाके टकरा गया। Then my friend got some sense कि हाँ अब बोलने का टाइम आ गया है कि this won't happen again, so he said that अब नहीं होगा, sorry sir, I'll definitely catch up, etc etc etc। और ये सब बोल के द टीचर वाज लाइक कि हाँ मैंने 2 थप्पड़ तो मार ही दिए हैं, सुना भी दिया है, लेट हिम गो, वैसे भी वो कर लेगा। सो ही वाज आस्क्ड टू लीव। उसके बाद मेरे मैथ्स टीचर ने सारे पेपर्स बांटे, एंड फॉर सम रीजन पेपर बांट के ही लेफ्ट। आफ्टर ही लेफ्ट, मी and a couple of other friends, we went to the CR and we laughed at him for no reason, like हंसने वाली तो कोई बात भी नहीं थी, 2 बार पिटा है वो लौंडा। तो वी स्टार्टेड लाफिंग। मीनवाइल हम में से एक बहुत ही साइंटिफिक इंसान वो जाके देख रहा है जिस दीवार से मेरा दोस्त टकराया था, अ स्मॉल पीस ऑफ सीमेंट एक्चुअली चिप्ड ऑफ फ्रॉम द वॉल, और दीवार पे एक गड्ढा बन चुका है। उसके बाद हम सब दोस्त को भूल चुके हैं, हम जाके गड्ढे को देख रहे हैं और हमने एनालिसिस शुरू कर दी। लाइक अलग लेवल का एनालिसिस हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज वी आर लुकिंग एट कि शेप कैसा है गड्ढे का, सीमेंट नीचे गिरा है कि नहीं, इज इट लाइक अ न्यू गड्ढा और वो पहले से था हमने ध्यान नहीं दिया, नीचे सीमेंट पड़ा हुआ था। पूरी तरीके से एनालिसिस हो चुकी है, वी ट्राइड एवरीथिंग, लाइक एक प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है वहाँ पे। वी हैव लाइक जियोलॉजिस्ट, वी हैव बायोलॉजिस्ट, हम वहाँ पे देख रहे हैं कि हम बेसिकली वी आर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हमने पूरा शेप देखा, हमने रिकंस्ट्रक्शन किया पूरा सीन का कि कैसे ये जाके टकराया था, 2 बार टकराया था, तो उसकी वजह से कैसा जहाँ पे वो टकराया था वहीं पे इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं, सब कुछ किया। वी वर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम यूजिंग अ कॉटन स्वॉब टू टेक अ कल्चर टू चेक उसमें उस पर्टिकुलर गड्ढे में ऑर्गेनिक मैटर है कि नहीं, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक मैटर होता तो मतलब कि ये पुराना गड्ढा है जिसके ऊपर टाइम के साथ साथ एल्गे फंगस कुछ तो जम गया है, बट ये नया गड्ढा होगा तो उस पर कुछ नहीं होगा। तो वी वर जस्ट दैट फार, और हमने सब कुछ देख लिया। लाइक लोगों के कान में मैल जम जाती है बातें सुन सुन के, लाइक द टीचर वाज येलिंग एट हिम एंड माय फ्रेंड वाज लाफिंग, तो उसके कान में जू तक नहीं रेंग रही थी, ही वाज लाइक डिडंट कान में मैल जम जाना चाहिए था, बट यहाँ पे मेरे दोस्त के कान में सीमेंट जम चुका है, डिबरी मिल रही है। इट्स लाइक अ प्रॉपर NDRF रेस्क्यू मिशन काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे हम चीज़ें चेक कर रहे हैं। और उस दिन के बाद, लाइक नाउ दैट वी नो कि अगर आपको 20 में 18.5 आ रहे हैं तो फिर क्या अंजाम होगा, उस दिन के बाद से किसी की फटी, मतलब किसी की भी ऐसी फटी ना हो, वो हुआ नहीं होगा। इवन मी, जिससे मेरे टीचर को कोई उम्मीद भी नहीं थी, मैं तक ऐसे पॉइंट पे था कि मेरे को कम से कम 18.5 तक तो लाना है किसी दिन। अगर मैं 14 खेलते गया मेरे को चोट देगा ये। सो इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्कोर हायर मार्क्स देन। वी वर नॉट मोटिवेटेड बाय IIT JEE, वी वर मोटिवेटेड बाय नॉट गेटिंग बीटन अप। एंड उस दिन के बाद से किसी की जुर्रत नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मैथ्स टीचर के सामने एक जोक पे भी हंसे। लाइक तुम अपना जो करना है पर्सनल टाइम पे, जितना सेंस ऑफ ह्यूमर निकलना है, जाकिर खान बनना है, बनो। मैथ्स की क्लास में तुमसे हंसी नहीं छूटनी चाहिए। दैट वॉज द स्टोरी दैट आई वांट टू शेयर टुडे, बिकॉज ऐसी हरकतें भी हुई है जहाँ पे लोग इतना पिटे हैं कि सीमेंट उखड़ गया दीवार से। नॉट अ ग्रेट स्टोरी टू endorse Ambuja Cement, but yeah, you get the point of it. And with that, we come to an end to the first episode of the Funny Podcast Season 3. Thank you so much for listening to me. Once again, this
entire season is brought to you in association with the Level Up Creator Program by Spotify India and Idea Youth Studios. Uh, every now and then, I'll be endorsing one particular podcast that you can check out from the cohort. Because अगर तुम मेरे podcast सुन रहे हो तो there are so many other talented people with so many cool ideas, so many amusing ideas. So the particular podcast that I'm going to talk about today is uh, by Shatya Tharian. It's called Chuma Conversations. There have been quite a lot of episodes that you can catch up on. You also know her as the girl who goes on Instagram and says hacks to learn Malayalam part XYZ. So do check out her podcast, do check out my podcast, and do let me know if my stories are still worth it or not. Thank you so much. I'll see you next Wednesday. Bye bye.